السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 218 ہے، 218 نمبر کی یہ کلاس ہے جس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 89 سے 106 89 سے 106 میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آپ کے سامنے اخیر میں تذکرہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنا کر بنو اسرائیل کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف بھیجا۔ انہوں نے قوم کو دعوت دی، فرعون نے ان کی بات کو نہ مانا بلکہ باتوں کا انکار کر دیا۔ آج کی آیات میں اس کے آگے سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال قد اجیبت دعوتکما، اب انہوں نے آخر میں جب یہ دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین تو ان کے مال کو برباد کر دے، ان کی طاقت کو توڑ دے کیونکہ یہ ایمان والوں کو پریشان کر رہے ہیں، تو اللہ نے جواب میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے تم دونوں کی دعا کو سن لیا، تو جب سن لیا اب تم سیدھے راستے پر چلو، اور تم ان لوگوں کے راستے پر مت چلو جن کو علم نہیں ہے، یعنی ان جاہلوں کا، ان ظالموں کا طریقہ مت اپناؤ۔ اللہ نے دعا سن لی ہے نا، تو تم اللہ کے شکریہ کے طور پر وہ عمل کرو جس سے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ فرعون ان کے پیچھے آیا اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آیا، ظلم کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں بھی ڈبا دیا۔ جب حضرت موسیٰ نکلے پیچھے پیچھے یہ لوگ بھی آئے، ان کو اللہ نے نکال دیا اور ان کو ڈبا دیا۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس اللہ پر ایمان لے آیا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے کہا الآنا، اب ایمان لا رہا ہے، وقد عصیت، اور اس کے پہلے تو نے اللہ کی نافرمانی کی اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا، یعنی موت کے ٹائم ایمان لا رہا ہے، عذاب دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، اب اس کا ایمان قبول ہونے والا نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ابھی اللہ تعالیٰ یہ صرف یہ نہیں کہ اللہ نے اس پر عذاب ڈالا بلکہ اللہ نے اسے عبرت بھی بنایا۔ اللہ کہتا ہے کہ آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو زمین و آسمان کے بیچ میں کر دیا، نہ زمین نے اسے خراب کیا نہ پانی نے خراب کیا، آج بھی اس کا جسم ویسا کا ویسا موجود ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سارے لوگ ہمارے آیتوں سے غفلت میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں آتی ہیں، ڈر بتایا جاتا ہے، آخرت کا عذاب بتایا جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، غفلت میں ہے۔ جب آئے گا تب دیکھیں گے ابھی کون سی موت آ رہی ہے، کون سی قیامت آ رہی ہے، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھی جگہوں پر رہنے کا ٹھکانہ بنایا اور پیارا رزق عطا کیا، تو ان میں اختلافات تب آئے جب ان میں علم آیا، یعنی جب یہ یہاں سے نکلے ہم نے رہنے کی جگہ دی، کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اچھا کھانا دیا، پھر علم کے بعد یہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے۔ یعنی آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت اختلافات کیے ان لوگوں نے، باریکیوں میں جانا، بال کی خال نکالنا، اللہ اس کا تذکرہ یہاں پر کر رہا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے، ان کے جھگڑے، ان کے لڑائی اور ان کے اختلافات کا اللہ رب العالمین انہیں بدلہ دے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اگر آپ کو شک ہے اس بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کیا، تو آپ پوچھیے ان لوگوں سے جو کتابوں کے پڑھنے والے ہیں آپ سے پہلے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ امت کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی تمہیں حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا رہے ہیں اور تمہیں شک ہے نا، تو جاؤ پوچھو اہل کتاب سے، یہودی نصارہ تمہارے سامنے موجود ہے، جا کر پوچھو کیا موسیٰ تھے، کیا فرعون تھے، ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ یہ قرآن کے سچی کتاب ہونے کی دلیل ہے کہ اس میں وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جا کر پوچھیے ان لوگوں پر جن پر کتابیں نازل ہوئی، لقد جاءک الحق من ربک، آپ کے پاس اپنے رب کی طرف سے حق آیا تو آپ اس میں شک کرنے والوں میں سے مت بن جائیے۔
वला तकूनन्न मिनल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, और उन लोगों में से मत हो जाइए जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया तो वो घाटा उठाने वालों में से हो गए। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून, यकीनन वो लोग जिन पर आपके रब का कलमा हक हुआ वो लोग ईमान नहीं रखते थे, यानी जिन पर अजाब आया, अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी को नाजिल किया, ये लोग अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते थे। वलौ जाअतहुम कुल्लु आया, और अगर आप उनके पास सारी निशानियां भी लेकर आ जाएं, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अजाब को देखेंगे तब तक ईमान नहीं लाएंगे। अब निशानियां दे दो, जो मांग रहे हैं दे दो, ये ईमान नहीं लाएंगे। कब तक? जब तक कि ये अजाब को अपनी आंखों से ना देख ले। जैसे फिरौन ईमान लाया, हजरत मूसा ने समझाया, मोजिजा दिखाया तो बोले झूठ बोल रहे हो, जादू दिखा रहे हो। कब ईमान लाया? जब अजाब को देख लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग अल्लाह के नबी आपके सामने भी हैं, जब तक ये दर्दनाक अजाब नहीं देखेंगे तब तक ईमान नहीं लाएंगे। फलौला कानत करियतुन आमनत फनफअहा ईमानुहा इल्ला कौम। अब अल्लाह ताला यहाँ पर एक नई बात बता रहा है कि कोई भी कौम अगर मौत के वक्त ईमान लाएगी, अल्लाह उसका ईमान कबूल नहीं करेगा। कोई भी करिया, कोई भी बस्ती ईमान लाए और उसका ईमान उससे नफा दे, ऐसा नहीं होने वाला सिवाय कौम यूनुस के, हजरत यूनुस की कौम के फलम्मा आमनु कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य, कि जब वो ईमान लाए हमने उन पर से अजाब को हटा दिया था दुनिया के अंदर, और उनको हमने एक आराम, एक सुकून अता फरमा दिया था। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर ये बात बता रहा है कि अगर अजाब नाजिल हो जाता है ना, उसके बाद अल्लाह ताला सुनता नहीं, ईमान कबूल नहीं करता। लेकिन एक कौम ऐसी थी जिसका ईमान अल्लाह ने कबूल किया था, वो कौम यूनुस, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम। कि जब यूनुस नाराज होकर चले गए, अल्लाह ताला इस कौम पर नाराज हुआ, अजाब भेज दिया। अजाब देखते ही सारे ईमान ले आए, तो अल्लाह ने इनको माफ कर दिया था, इनके ईमान को कबूल कर लिया था, दुनिया में भी फायदा दिया और रहने का ठिकाना अल्लाह ताला ने दे दिया था। पर सिर्फ इस कौम को दिया, उसके अलावा अल्लाह किसी को ये मौका देने वाला नहीं है। वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्द, अगर अल्लाह ताला चाहता तो जमीन में सारे लोग ईमान ले आते। तो क्या आप लोगों को जबरदस्ती ईमान में दाखिल करना चाहते हैं यहाँ तक कि वो मोमिन हो जाएं? क्या आप लोगों पर जबरदस्ती करेंगे? यानी अल्लाह के नबी को समझाया जा रहा है कि आप परेशान मत होइए, आपका काम है पहुंचाना, बताना, दावत देना, कबूल करें ना करें ये अल्लाह और बंदे का मामला है। अगर अब ये कबूल ना करें तो इसके गुनहगार ये हैं। आप टेंशन मत लीजिए, फिक्र और गम मत कीजिए। वमा काना लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, और कोई भी नफ्स अल्लाह की इजाजत के बिना ईमान नहीं ला सकता। वयजअलु रिस्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, और अल्लाह ताला वो लोग जो अकल नहीं रखते उन पर गंदगी को डाल देता है। एक होता है ईमान, एक होता है कुफ्र और शिर्क। अल्लाह ने कहा कुफ्र गंदगी है और ईमान सेहत और नजाफत है। अल्लाह ताला ईमान वालों को ईमान देता है, पर जिनको नहीं पसंद फरमाता, जो लोग नहीं कबूल करना चाहते, अल्लाह उन पर गंदगी को डाल देता है। ये बेअक्ले लोग हैं, बिना अकल के काम करने वाले लोग हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल इंजुरू माज़ा फिस समावाति वल अर्द, गौर करो, देखो जो आसमान और जमीन में है उसको। आसमान में अल्लाह ने कितनी नेमतों को रखा है, चांद है, सितारे हैं, क्या क्या है। अल्लाह ने जमीन में कितनी नेमतों को रखा है, इस पर गौर करो। वमा तुगनिल आयात वन नुज़ुर अन कौमिन ला युमिनून, लेकिन जो कौम ईमान नहीं रखती ना, उसे निशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, डराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह कह रहा है ईमान रखो, आसमान को देखो, जमीन को देखो, अल्लाह ने कैसे सब कुछ बनाया है। लेकिन जो कौम ईमान नहीं रखती ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डराइए, समझाइए, निशानी बताइए, कुछ भी कर लीजिए, ये ईमान लाने वाले नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके बारे में यहाँ पर बता रहा है फहल यंतज़िरून इल्ला मिस्ला अय्यामिल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिहिम, तो क्या ये लोग इंतजार कर रहे हैं अपने पुराने जैसा कि जब तक कि अल्लाह का अजाब उन पर ना आ जाए। तो कह दीजिए तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। यानी आप इन्हें ईमान की दावत दे रहे हैं, ये लोग ईमान कबूल नहीं कर रहे हैं, तो शायद ये पुराने लोगों पर जैसे अजाब आया था ना, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार करने तो बोल दो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, देखते हैं अल्लाह ताला का अजाब कैसा तुम्हारे ऊपर आएगा। सुम्मा नुनज्जी रसूलना वल्लज़ीना आमनू, फिर हम अपने नबी को, अपने रसूल को निजात देंगे, ईमान वालों को निजात देंगे। इसी तरीके से हम पर मोमिनों की मदद करना वाजिब है। यानी जब अल्लाह ताला कहता है तकालीफ और परेशानी आती है ना, अल्लाह ताला मोमिनों को निजात देता है, अल्लाह ताला मोमिनों के लिए आसानियां पैदा फरमाता है, अल्लाह ताला मोमिनों की तकालीफ को दूर फरमाता है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला वादा कर रहा है ईमान वालों से, अच्छे लोगों से, जो ईमान पर कायम रहे, उन लोगों से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद करता है। अल्लाह ने इसको अपने ऊपर हक बताया है, वरना अल्लाह पर हक बताने वाला कौन है? पर अल्लाह कह रहा है मुझ पर हक है कि मैं मोमिनों की मदद करूं। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल या अय्युहन नास, ए लोगों, अगर तुम्हें
शक है मेरे दीन के बारे में, तो मैं इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, लेकिन मैं इबादत करता हूँ उस अल्लाह की जो तुम्हें मौत देने वाला है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिनों में से हो जाऊं। अब यहाँ पर अल्लाह के नबी बारात का इजहार कर रहे हैं, तुमको दीन बता दिया, समझा दिया, अब सुनो मेरी बारात कि मैं उन माबूदों की इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, मैं तो उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो मौत और जिंदगी का देने वाला है, और मैं मुसलमानों में से हूँ। यानी मैं मुशरिकों के बीच रह रहा हूँ मक्का में, पर मैं मुशरिक नहीं हूँ। मैं बारात का इजहार कर रहा हूँ कि मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो एक अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वउमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिनों में से हो जाऊं, और वअन अकिम वजहका लिद्दीन हनीफा, और हुक्म दिया गया है मुझे कि मैं अपने चेहरे को हनीफ दीन की तरफ फेर लूं और मैं शिरक करने वालों में से ना हो जाऊं। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और तुम मुशरिकों में से मत हो जाना। यानी अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हर काम अल्लाह के लिए करूं, मुखलिस होकर करूं, अल्लाह की रजा के लिए करूं, अल्लाह को खुश करने के लिए काम करूं, मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है। वला तदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउक वला यदुर्रुक, बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने आखिर में बताई कि वला तदउ, और तुम इबादत मत करो अल्लाह को छोड़कर उनकी जो नफा और नुकसान के मालिक नहीं है। फ़इन फ़अलता, अगर तू ऐसा करेगा, फ़इन्नका इज़म मिन अज़्ज़ालिमीन, तो तू जालिमों में से हो जाएगा। यानी अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत ना करूं, उनकी इबादत ना करूं जो नफे नुकसान के मालिक नहीं है, वो मुझे कुछ देने की ताकत नहीं रखते हैं। देने वाला, अता करने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसी की कुदरत, ताकत, इख्तियार में हर चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज की आयत में सबसे पहले बनु इसराइल के बारे में हमें बताया, उनको निजात कैसे दी है बताया, फिर वो ईमान लाया, अल्लाह ने उसका ईमान कबूल नहीं किया, फिर अल्लाह ताला ने उसे इबरत बनाया, ये बताया, फिर बनी इसराइल को अल्लाह ने नेमतें और घर दी, अल्लाह ने ये बताया, फिर अल्लाह ने हमें बताया कि आयतों में शक नहीं करना चाहिए, अजाब का इंतजार नहीं करना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए, फिर बताया कि अल्लाह ने हजरत यूनुस की कौम को निजात दी थी, फिर अल्लाह ताला इसके बाद अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, आसमान और जमीन की मिल्कियत, कुदरत को हमारे सामने जिक्र कर रहा है, और अल्लाह ताला ने एंड में बताया कि इबादत के लायक वो है जो नफे और नुकसान का मालिक हो, जिसकी ताकत हो, कुव्वत हो, उसी की इबादत होना चाहिए। अल्लाह ताला ने बड़ी अहम बातें आज की इन आयत में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताई। अब इसके बाद मुश्किल अल्फाज, उजीबत, हैज बीन आंसर्ड, तुम्हें जवाब दिया गया, तुमने एक सवाल किया, तुम्हें जवाब दिया गया। जावजना, वी टुक, हमने लिया, हमने निजात दी, हमने निकाला। बग़यम व अदवा, एरोगेंस एंड एग्रेशन, गुस्से में, गजब में, हद से तजाउज करते हुए वो लोग निकले थे, एग्रेसिव होकर निकले गए थे, एरोगेंट होकर निकले थे वो लोग। अल गरक कहा जाता है ड्राउनिंग को, डूब जाने को। अल आना, नाउ, अब तुम ईमान ला रहे हो। नुनज्जी का, वी विल सेव, हम बचाएंगे, आज हम तेरे बदन को बचाएंगे, पानी में गलेगा और खराब नहीं होगा। मुबव्वा कहा जाता है सेटल प्लेस को, जगह को जहां पर इंसान रहता है, गुड प्लेस को कहा जाता है। कशफना, वी रिवील्ड, हमने हटा दिया, हमने अजाब को हटा दिया, अजाब खत्म कर दिया। उसके बाद तुकरहू या करिहा या करहू का जो लफ्ज होता है वसल में किसी नापसंदीदा चीज के लिए इस्तेमाल होता है, बुरी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। रिस्क कहा जाता है डिसग्रेस को, यानी अल्लाह ताला गंदगी को, जिल्लत को डाल देता है जो लोग कुफ्र करते हैं उनके ऊपर। उनजुरू मतलब ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करो, आसमान पर गौर करो, जमीन पर गौर करो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तुम्हें क्या कहता है ये तुम्हें करना चाहिए। उसके बाद नुनज्जी का मतलब होता है वी विल सेव, हम बचाएंगे, हम निजात दे देंगे। और अकीम मतलब होता है टुवर्ड्स, कि तुम अपने चेहरे को फेरो, अपने चेहरे को उस तरफ, चेहरे को दीन की तरफ फेर लो, ये बताना अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमसे मकसद है। अब उसके बाद तदब्बुर, आज की आयत पर हमने क्या गौर किया, आज की आयत से हमें क्या समझ में आया। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन की दुआ सुनता है। ये आज के लिए बहुत प्यारी चीज है। आज के दौर में हम लोग कैसे डरते हैं ना हर चीज से, हमें तो लग रहा है दुआ कबूल ही नहीं हो रही, अल्लाह दुआ सुनता है। दुआ का वसीला होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, नेकियों के वसीले होना चाहिए, अल्लाह के नामों का वसीला होना चाहिए। अगर हक तरीके से दुआ मांगोगे अल्लाह जरूर दुआ सुनता है। अल्लाह ने हजरत मूसा की सुनी ना, हजरत हारून की सुनी ना, परेशान थे, कोई साथ नहीं था, सुपर पावर सामने खड़ी थी, अकेले तनहा जरा से कमजोर लोगों के साथ, और अल्लाह ने इन कमजोरों को ताकत दे दी और ताकतवरों को डुबा दिया। अल्लाह ताला दुआ सुनता है।
नंबर 2, दुआ की कबूलियत का शुक्र यह है कि हम दीन पर अमल करें। जैसे अगर मैंने अल्लाह ताला से मांगा कि अल्लाह तू मुझे औलाद दे दे, अल्लाह तू मुझे माल दे दे, अल्लाह तू मेरा कारोबार चला दे, अब मैंने एक दुआ मांगी, अल्लाह ने अगर मेरी दुआ सुन ली तो शुक्रिया क्या है, मैं दीन पर अमल करूँ। अल्लाह यहाँ पर हजरत मूसा और हजरत हारून को कह रहा है कि जब अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली ना, फस्तकीमा, सीधे रास्ते पर चलो, दीन पर अमल करो, सिराते मुस्तकीम पर चलो, हलाल को तलाश करो, हराम से बचो, तो दुआ अगर कबूल हो जाए तो शुक्रिया का तरीका ये है कि बंदा दीन पर अमल करे। और हम उल्टे लोग हैं, दुआ जितनी अल्लाह सुनता, जब नहीं सुनता है तब रो रो के दुआएं मांगेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, और जब अल्लाह दे देता है नाफरमान हो जाते हैं, बेनमाजी, नाफरमान, गंदे, हराम जिंदगी जीने वाले बन जाते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। नंबर 3, दुआ की कबूलियत में वक्त लगता है। हम लोग बड़े बेसब्रे हैं, मांगते हैं फौरन रिजल्ट चाहिए, वक्त लगता है। हजरत मूसा परेशान हुए, तकलीफ में रहे, फिरौन ने सताया, कौम ने सताया, बनु इसराइल के लड़कों को ज़िबा भी किया गया, सब हुआ, उसके बाद अल्लाह ने मदद की। तो दुआ की कबूलियत में वक्त भी लगता है। जरूरी नहीं कि आप कोई चीज मांग रहे अल्लाह ताला फौरन ही अता कर दे। अल्लाह ताला के पास टाइम कभी कभी होता है, फौरन अल्लाह दे देता है, कभी कभी वक्त के बाद देता है, और जब तक आप दुआ मांगते हो तब तक आपको इबादत का सवाब भी देता है। तो यकीनन मोमिन का तो फायदा ही फायदा है। नंबर 4, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो एक ही चीज को किसी के लिए नेमत और किसी के लिए अजाब बना सकता है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात पता चली आज की शायर से कि अल्लाह चाहे तो एक ही चीज किसी के लिए अजाब और किसी के लिए नेमत। पानी था समंदर का, हजरत मूसा के लिए निजात का जरिया मतलब नेमत, और फिरौन के लिए अजाब मतलब डुबा दिया। एक ही चीज को अल्लाह ने नेमत भी बना दिया और अजाब भी बना दिया। बहुत डरना चाहिए मोमिन को। अगर अल्लाह माल दे रहा है ना, तो माल कई लोगों के लिए नेमत होता है, कई लोगों के लिए अजाब होता है। अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला नेमत वो दे जो नेमत मुझे तेरी फरमाबरदारी की तरफ लेकर आए। नंबर 5, आखिरी वक्त में तौबा कबूल नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत सारे बूढ़े बुढ़े होने का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारी खवातीन बुजुर्ग होने का इंतजार कर रही हैं। जब बुढ़ी हो जाएंगी तब पर्दा करेंगी, बुर्का पहनेंगी, अल्लाह को याद करेंगी, नमाजें पढ़ेंगी, कुरान पढ़ेंगी, अच्छे काम करेंगी। बहुत सारे बुढ़े जो इरादा रखते हैं सफेद दाढ़ी हो जाएगी, सफेद बाल हो जाएंगे, जब नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आखिरी वक्त में अल्लाह तौबा कबूल नहीं करता। जब बिल्कुल मौत सामने खड़ी हो जाए ना, तब रो रो कर भी पुकारोगे, अल्लाह सुनने वाला नहीं। अल्लाह ताला कहता है तौबा वक्त रहते कर लिया करो, माफी वक्त रहते मांग लिया करो। नंबर 6, ईमान वो काबिल कबूल है जो गैब पर किया जाए, बिना जाने बिना देखे। अब मैं अजाब सामने देख लूं और फिर बोलूं अरे अल्लाह ये अजाब जो दिख रहा है ये तो आने ही वाला था, अब मैं ईमान लाता हूं। जैसे फिरौन ने जब तक समझाया तब तक नहीं लाया, गैब पर ईमान नहीं लाया, जब देख लिया तब ईमान लाया, अल्लाह ने कबूल नहीं किया। तो अल्लाह ताला को गैब का ईमान पसंद है। मुझे पता है जन्नत कैसी दिखती है, नहीं, पर मैं ईमान रख के अमल करता हूँ। मुझे पता है जहन्नम कैसा है, नहीं, पर ईमान रख के मैं डरता हूँ। मुझे पता है कब्र का अजाब कैसा है, नहीं, पर मैं गैब पर ईमान रखता हूँ। अल्लाह ताला को गैब का ईमान पसंद है कि मैं बिना देखे ईमान रखूं, मैं नहीं जानता हूँ ईमान रखूं, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला की ताकत पर, उसकी कुव्वत पर, उसकी कुदरत पर यकीन है। बंदा मोमिन को इसे भी अपनी जिंदगी बनाना चाहिए। नंबर 7, तकब्बुर का नतीजा दर्दनाक अजाब होता है। बहुत सारे हमारे यहाँ तकब्बुर करने वाले, अकड़ने वाले, किसी को माल का घमंड, किसी को घर का घमंड, किसी को जिस्म का घमंड, किसी को चेहरे और बालों का घमंड, किसी को सलाहियत का घमंड, किसी को इल्म का घमंड, आलिम है तो घमंड, डॉक्टर है तो घमंड, इंजीनियर है तो घमंड। ये घमंड अजाब के अलावा कुछ नहीं दिलवाता है, दर्दनाक अजाब। फिरौन को बहुत घमंड था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो रब हूँ। अल्लाह ने कैसा इबरत बना दिया उसे, ये इबरत से इबरत हासिल करो। नंबर 8, गफलत बर्बाद कर देती है, अजाब का यकीन रखो। गफलत में मत रहो, हम लोग बहुत गाफिल लोग। अरे अभी कहाँ मौत आ रही है, अभी कहाँ जहन्नम है, अभी कहाँ कयामत है। गफलत गफलत गफलत, अचानक मौत आके पकड़ लेती है। बैठे बैठे मर गए, गिर के मर गए, गाड़ी पे मर गए, खत्म। गफलत में मत रहो, फिरौन गफलत में था। गफलत में मत रहो, हर वक्त हाजिर नाजिर रहो, हर वक्त अपने आप को हाजिर रखो। अब भी अगर मौत असर में आ जाए तो मेरा अमल पूरा होना चाहिए, मेरी नमाज पूरी होना चाहिए, मेरी इबादत पूरी होना चाहिए। गफलत में रहने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 9, तकालीफ में ईमान पर कायम रहने से अल्लाह नेमतें देता है। तकलीफ, परेशानी, दुख, दर्द, अजाब, दुश्मन, इन हालात में भी जो ईमान पर कायम रहता है ना, अल्लाह उसे नेमतें देता है। बनु इसराइल डरे,
फिर उन्होंने सताया, मारा, काट दूंगा, हाथ पैर काट दूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा, सब, फिर भी वो ईमान पर कायम रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ईमान की बुनियाद पर उन्हें नेमतें दी, अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तकालीफ को दूर फरमाया। तो यकीनन जो बंदा ईमान पर कायम रहता है तकालीफ में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी परेशानियों को दूर फरमा देता है। नंबर 10, रिस्क में बरकत के लिए ईमान जरूरी है। हमारे यहाँ देखिए रिस्क कहाँ कहाँ मांगने जा रहे हैं लोग, बेनमाजी, बद्दीन, शिरक करने वाले पता नहीं कहाँ कहाँ रिस्क मांगने के लिए जाते हैं। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों को हम रिस्क देते हैं। अल्लाह कहता है ना कि जब वो ईमान लाए तो हमने रहने के अच्छे घर भी दिए और हमने तैयब रिस्क भी दिया, पाकीज़ा रिस्क दिया। रिस्क दिया ईमान की बुनियाद पर। अपना ईमान जितना मजबूत करोगे अल्लाह उतना रिस्क देगा इंशाअल्लाह। ईमान में जितनी कुव्वत पैदा करोगे अल्लाह ताला रिस्क में उतनी बरकतें देगा। तो रिस्क चाहिए, ईमान को मजबूत करो, अल्लाह ताला ईमान की बुनियाद पर रिस्क देता है। नंबर 11, दलील आने के बाद तकब्बुर बर्बादी का जरिया है। दलील आ गई थी, मूसा ने समझा दिया था, मोजज़े भी आ गए थे, पर फिर भी तकब्बुर किया, बर्बाद हो गया। हमारे यहाँ कई लोग दलील के बाद तकब्बुर करते हैं। सूद लेना कैसा है? कहा हराम। का नहीं नहीं नहीं। इंश्योरेंस करा सकते हैं क्या? हराम। का नहीं नहीं नहीं। दलील सुनता है, कुरान हदीस सुनता है। किराए पे मकान ले रहा हूँ, बंद किराए पे मकान ले रहा हूँ, कोई किराया नहीं दूंगा, एडवांस देकर ले रहा हूँ, किराया खत्म हो जाएगा, हराम है, फर्क नहीं पड़ता। बेटी का हिस्सा दबाना हराम है, फर्क नहीं पड़ता। दलील के बाद तकब्बुर करने वाला बर्बाद होता है, दुनिया और आखिरत में अजाब को अपने ऊपर लाजिम करार दे देता है। नंबर 12, अल्लाह से तौफीक मांगो, क्योंकि उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं होता। जैसे अगर नमाज पढ़नी है ना तो कहो अल्लाह मुझे तौफीक दे के मैं नमाजी बन जाऊं, अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं रोजे रख पाऊं, अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं इबादत कर पाऊं, अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं नेक बन पाऊं। अल्लाह ताला से हमेशा तौफीक मांगा करो। अल्लाह ताला से जब तक तौफीक मांगोगे, क्योंकि अल्लाह की इजाजत के बिना, अल्लाह कह रहा है ना ईमान ही नहीं ला सकते, ईमान ही अल्लाह की इजाजत से होता है। तो अल्लाह ताला से तौफीक की दुआ किया करो, अल्लाह ताला से तौफीक मांगा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपनी तौफीक की बुनियाद पर, अपनी इजाजत की बुनियाद पर हमें नेकियां अता करता है। नंबर 13, आसमान और जमीन की खिलकत पर गौर करो। आसमान जमीन, अल्लाह बार बार कुरान के अंदर कहता है, क्या तुम आसमान पे गौर नहीं करते, हमने उसको कैसे फैलाया? क्या तुम जमीन पर गौर नहीं करते? क्या है आसमान? कितना बड़ा आसमान, इस जमीन से कितने करोड़ गुना बड़े हैं ये चांद, ये सूरज, सितारे, गैलेक्सीज। उसके अलावा ये जमीन, कितनी बड़ी जमीन, इसमें मिट्टी है, इसमें दरख्त हैं, फ्रूट हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, जानवर हैं, चरिंदे हैं, परिंदे, मछलियां हैं, समंदर है। अल्लाह कहता है गौर करो तो अल्लाह पता चलेगा अल्लाह क्या है, क्या पैदा करने वाला, क्या तख्लीक करने वाला, क्या अजमत वाला, क्या कुव्वत वाला। तो आसमान और जमीन पर गौर करो तब पता चलेगा अल्लाह की अजमत क्या है, क्योंकि ये सब तो बनाई हुई चीजें है ना। तो बनाने वाला कैसा होगा, बनाने वाले का क्या आलम होगा, इस बात पर बंदा मोमिन को गौर करना चाहिए। नंबर 14, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत यूनुस पर नाराज हो गया तो हमारी क्या औकात और हैसियत है? अल्लाह ने हजरत यूनुस को कहा कि तुम कौम को दावत दो, जब तक ईमान ना लाए तब तक आपका काम है दावत देने का। हजरत यूनुस को गुस्सा आ गया, कहा इस कौम पर तो अब अल्लाह का अजाब आएगा, छोड़कर चले गए। वाकई आपने सुना होगा, कश्ती में जा रहे थे, क्या क्या मामला हुआ, उसके बाद समंदर में डाल दिए गए, अल्लाह ने मछली के पेट में डाल दिया। जब अल्लाह नबी से नाराज हो गया कि उनको समंदर में पहुंचा दिया, मछली के पेट में पहुंचा दिया, एक गलती की बुनियाद पर कि अल्लाह ने बोला था रुको और चले गए। हम तो दिन भर नाफरमानी कर रहे हैं, दिन भर उठने से लेकर सोने तक नाफरमानी कर रहे हैं, हर अमल में नाफरमानी कर रहे हैं। हमारा मामला क्या होगा, अल्लाह हमसे कितना नाराज होगा, इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए। नंबर 15, अल्लाह की नाफरमानी से दुनिया में जिल्लत मिलती है। जिल्लत कोई पसंद करता है कि मैं जलील हो जाऊं, रुसवा हो जाऊं, लोगों में बदनाम हो जाऊं? कोई पसंद नहीं करता। अल्लाह की नाफरमानी जितनी बढ़ाओगे अल्लाह तुम्हें उतना जलील करेगा, जिल्लत वाला अजाब देता है अल्लाह ताला उस बंदे को जो नाफरमान होता है। नेक्स्ट नंबर 16, दावत देने के बाद कोई ईमान लाना है तो फिक्र ना करो, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया। भाई आप किसी को दीन की दावत दे रहे हैं कि भाई ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है या गलत है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने बता दिया ना, काम खत्म। अब वो कबूल करे ना करे वो अल्लाह और बंदे का मामला, आपका फर्ज पूरा हो गया। पर हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग अपने आप को जिम्मेदारी मानने लगते हैं कि नहीं साहब जन्नत मेरे हाथ में, सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये जन्नती है, जहन्नमी है, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। कौन हो आप? आपको खुद अपना पता नहीं कि आप कहाँ जाने वाले हो, आप कौन हो? आपका काम है सिर्फ पहुंचाना। तो दाई का काम, दावत देने वाले का काम है पहुंचाना, पहुंचा दिया, फर्ज पूरा हो गया। कबूल करना ना करना ये अल्लाह और बंदे के बीच का मामला, इस चीज में बहुत ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। नंबर 17,
قوموں پر آئے ہوئے عذاب کو پڑھنا چاہیے. اللہ نے حضرت نوح کی قوم پر عذاب بھیجا, قوم ہود پر عذاب بھیجا, قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب بھیجا, کفار مکہ پر عذاب بھیجا. ان قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرو. ایک قوم نے ناپتول میں کمی کی, اللہ نے ختم کر دیا. ایک قوم نے فحاشی کی, اللہ نے ختم کر دیا. ایک قوم نے نبی کی نہیں مانی, اللہ نے ڈبا دیا. اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ کی بنیاد پر جب قوموں کو ختم کر دیتا تھا, وہ سارے گناہ ملا کر ایک ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں. عبرت حاصل کرو, قوموں کے واقعات کو پڑھو, ان کے واقعات کو عبرت کے لیے پڑھو تاکہ ہماری زندگی بہتر بن جائے, ہماری آخرت بہتر بن جائے. نیکسٹ نمبر 18, آپ کی نیکی اور بدی آپ ہی کے ساتھ رہتی. یعنی ایسا نہیں کہ آپ نیک کام کرو گے کوئی اور لے جائے گا, آپ گناہ کرو گے کوئی اور لے جائے گا. نیکی بھی آپ کی آپ کے پاس سلامت ہے, بدی بھی آپ کے پاس ہے. دونوں کا حساب آپ کو ہی اللہ رب العالمین کے آگے دینا ہوگا. نہ کوئی آپ کی نیکی لے سکتا ہے, نہ کوئی آپ کی بدی لے سکتا ہے. نمبر 19, اللہ رب العالمین مومن کی ہر حال میں مدد کرتا ہے, ہر حال میں. یہ کیا ہے, حالات کوئی زیادہ تھوڑی بگڑے ہیں. ابھی بھی آپ آزاد ہو, نماز پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, دین پر عمل کرتے ہو, دین کی بات کرتے ہو, آزاد ہو آپ. ابھی کون سے برے حالات ہوئے ہیں, لیکن اللہ مدد کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ ایمان کو مضبوط تو بناؤ, اپنے آپ کو مضبوط تو بناؤ, اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے. اللہ رب العالمین ہر حال میں مومنوں کی مدد کرتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کی مدد کرتا ہے. اس وعدے پر بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے. نمبر 20, دعوت دینے کے بعد برات کا اظہار بھی کر دینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے سگے بھائی کو دعوت دے رہے ہو کہ یہ بدعت ہے, یہ غلط ہے, یہ شرک ہے, آپ کو نہیں کرنا چاہیے. سمجھا دیا نا. ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا کرو کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا, اب جو آپ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں, میں آپ کی طرح کرنے والا نہیں ہوں, میں نے آپ کو بتا دیا, اس بات پر اللہ گواہ ہے. تو دعوت دینے کے بعد برات کا اظہار بھی کر دینا چاہیے کہ ابا میں نے آپ کو بتا دیا, امی میں نے آپ کو بتا دیا, بھائی میں نے آپ کو بتا دیا, یہ حلال یہ حرام, یہ صحیح یہ غلط, اب آپ کرو نہ کرو یہ اللہ اور آپ کے بیچ کا معاملہ ہے. تو برات کا اظہار بھی کر دینا چاہیے. نیکسٹ نمبر 21, موت اور زندگی کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہے. یہاں پر اینڈ میں کہا نا, اللہ کے نبی کو کہا گیا نا کہ آپ کہیے کہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو موت کا دینے والا ہے. موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں, دنیا مار نہیں سکتی آپ کو. ساری طاقتیں مل جائیں, قوتیں مل جائیں, سارے پروگرام بنا لیں, سازشیں بنا لیں, اس کی اجازت کے بنا کچھ ہونے والا نہیں. موت دے گا بھی تو وہی, زندگی دے گا بھی تو وہی. یہ ایمان مومن کو رکھنا چاہیے. نمبر 22, دین میں اخلاص شرط ہے, خالص پیورٹی شرط ہے اسلام کے اندر. کوئی بھی عمل کرو خالص اللہ کے لیے. میرا مقصد اللہ کی رضا, نماز اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, زکوٰۃ اللہ کے لیے, صدقہ اللہ کے لیے, مدد اللہ کے لیے, اچھی بات اللہ کے لیے, دعوت اللہ کے لیے, تقریر اللہ کے لیے, جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے. اسلام میں اخلاص شرط ہے. اخلاص کے بنا اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. اور آخری چیز, آخری ورڈ, آخری آیت میں جو اللہ نے کہا کہ نفع نقصان کا مالک بھی صرف اللہ ہے. جو لوگ ہمارے یہاں بڑے خدا بنے پھرتے ہیں نا, اس کا یہ بگاڑ دوں گا, اس کا وہ بگاڑ دوں گا, اسے تو جینے نہیں دوں گا, اسے تو کام کرنے نہیں دوں گا, کوئی اوقات نہیں ہے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. فائدہ دینے والا اللہ, نقصان دینے والا اللہ. ہر چیز کا اختیار اللہ رب العالمین کا ہے, اس کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. الحمدللہ تدبر کے یہ کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھے. آخر میں عمل, کہ آج کی آیت پر ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے. نمبر 1, دعا کرنے میں خوب محنت کرو. دعا خوب محنت سے مانگا کرو. اللہ دے, اللہ عطا کر, اللہ مدد کر, اللہ مدد کر, اللہ مدد کر. دعا میں بڑی محنت کرنا چاہیے. نمبر 2, توبہ کرو موت کے آنے سے پہلے. ابھی زندہ ہو نا, استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کر, اللہ میں نے خطا کی, غلطی کی, اب نہیں کروں گا. موت کے پہلے توبہ کرو. نمبر 3, اہل علم سے سوال کیا کرو. ہمارے یہاں لگے ہوئے نا لوگ دین پھیلانے میں, واٹس ایپ پہ دین, فیس بک پر دین, جو آیا بھیج رہے ہیں آگے. تحقیق کیا کرو, علماء سے جڑو, علماء سے اپنا ربط و ضبط مضبوط بناؤ, قرآن و حدیث والوں سے جڑو, اسی کے بعد کوئی بات آگے بڑھایا کرو. نمبر 4, اکیلے بیٹھ کر اللہ کی قدرت پر غور کیا کرو, اس کی عظمت پر غور کیا کرو. کیا ہے وہ اللہ, کیسا بنانے والا, کیسا مالک, کیسا خالق, اس بات پر غور کیا کرو. نمبر 5, نبیوں کے واقعات پڑھا کرو. جو نبی گزرے ہیں نا, ان کے واقعات پڑھو. کیا زندگی رہی, کیا ہوا, کیا عمل کیا, کیا قوم نے گناہ کیا, کیسے اللہ کا عذاب آیا, اس کو بھی پڑھا کرو. نمبر 6, ایمان پر, ایمان جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام اور ایمان دیا ہے نا, اس پر یقین رکھو. یہ سب سے اچھا ہے.
ये सबसे अच्छी चीज़ है। अल्लाह ने मुझे दिया, अल्लाह ने मुझे मोमिन बनाया, इस बात पर बड़ा यकीन होना चाहिए। और आखिरी चीज़, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो। इबादत मतलब हर चीज़ इबादत, दुआ इबादत, डर इबादत, खौफ इबादत, मोहब्बत इबादत, नमाज इबादत, रोज़ा इबादत, सजदा इबादत, सब सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करो। गैरुल्लाह की इबादत या गैरुल्लाह से मांगने को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की आयत में ये बुनियादी चीज़ें आपके सामने जो मुझे लगी, ज़रूरी महसूस हुई, मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन, तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ताला, कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला, जो रोज़ ये आयत में बयान करता हूँ, सबसे पहले खुद मुझे और तमाम सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।